A very good afternoon, all of you. Hope everybody is at your home safely in the weekend. So don't get worried that we have this session on weekend also, because as I see a lot of interest coming up from all of you. सब लोग बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आप वीडियोस भी फिर से बाद में भी देख रहे हो, प्रोग्राम भी प्रैक्टिस कर रहे हो, डाउट्स भी पूछ रहे हो, रहेगा. सो ऑल ऑफ यू प्लीज लुक एट दिस. एवरीबडी इज आस्किंग मी आज का पीडीएफ शेयर कर दो, प्रेजेंटेशन शेयर कर दो. सी वॉट एवर द सेशन दैट वी हैव डन यस्टरडे, वो सेशन था ये डेट क्लास वाला. ये जो वीडियो है, ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे फाइल्स पड़े हुए हैं. सी ये वीडियो जो यहाँ पे है, वो वीडियो के नीचे अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे एक लिंक है. सो ये वीडियो डिस्क्रिप्शन के नीचे यहाँ पे लिंक है. वी हैव ए लिंक हियर. इफ एट ऑल यू क्लिक ऑन दैट, you will have that day's entire programs. All the programs are listed out here. So all the programs are given in a link under the video. Just under the video you can find this link. Hope everybody could understand. आपके कैजला ग्रुप में हम लोग ये प्रोग्राम शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पे लिंक दे रहे हैं. ये क्लिक करते ही आपको ये प्रोग्राम्स पूरा ओपन हो जाएगा. अगर हम लोग असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं तो असाइनमेंट्स भी यहाँ पे लिखते हैं, प्लीज़ फाइंड द असाइनमेंट फॉर टुडे, और उसका भी लिंक दे देते हैं. आई रिपीट, आपका असाइनमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, राइट. सो दिस इज हाउ वी डू इट. Now we'll just get back and look at our things. Please ensure you read the important syllabus first and then go with the lower priority so that you get better percentage. Minimum percentage to clear your certification is 70%. I repeat, आपको minimum 70% आना चाहिए ताकि आपको ये MTA certificate मिल सके. So we'll get into the programming and we are going to learn a new concept called strings. As we want to learn the new concept called strings, हम लोग यहाँ पे Google पे चले जाते हैं. In the Google we will try to see. In the Google we will try to see something called strings in Java. Once you search for strings in Java, I'll put it as Oracle. Now you will get this from the Oracle website. Now once you click on it, see you have the Java tutorial which is given by Oracle directly. Now in this there is a complete detail about your string class. What is a string, how to create strings, how to find the length of a string, and how to convert, how to concatenate, यानी दो string को add कैसा करते हैं, and then how to convert your numbers into strings, strings into numbers, all that with examples यहाँ पे दिया हुआ है. You can learn easily by looking at this tutorial which is officially given by Oracle. ये बहुत इजी है, बहुत आसानी से हम लोग यहाँ से पढ़ के समझ के हम लोग अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इजी इन यूजिंग स्ट्रिंग्स. ये बहुत आसानी से हम लोग स्ट्रिंग सीख सकते हैं. ये ट्यूटोरियल आपको बहुत आसानी से पढ़ के समझ के ये प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. I repeat, the strings documentation is written so easily that you can understand the strings effectively. You can look at the examples and start practicing directly. ये बहुत आसान concept है, so you don't worry on this, but still we will try to look at some theory. So strings is unlike your regular data type. So मैं अपना IntelliJ IDE use करता हूँ. I'll use my IntelliJ IDE to explain it. So if at all you look at the data types that we were commonly using till yesterday, that is your int type or your float type, long type, whatever we have been looking at till yesterday. ये हमारा कल का program था. I'm just deleting all that. So assume that I'm using int I equal to 10. Once I look at my int is given as a data type here, my dark blue colored keyword. So it is recognized as my data type. Similarly, if at all I give it as char ch equal to, I give it in single quotes a. But if at all I give it as string, capital string,
See, it is not string str equal to hello. See, this hello and this string is not considered as your data type. सी इंट मुझे ये ब्लू कलर में दे रहा है, कैर ब्लू कलर में दे रहा है, लेकिन ये स्ट्रिंग मुझे ब्लू कलर में नहीं दे रहा है. इट इज बिकॉज इट इज नॉट माई स्टैंडर्ड डेटा टाइप. जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप थे, जो हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में जब सीखे हैं, तो हम लोग सीख रहे थे कि इंट कैसे यूज़ करना है, फ्लोट कैसे यूज़ करना है, लॉन्ग कैसे यूज़ करना है, कैरेक्टर क्या था, बुलियन क्या था, ऑल दिस वी हैव बीन लुकिंग एट. लेकिन वी वर नॉट लुकिंग एट वन स्पेसिफिक टाइप कॉल्ड स्ट्रिंग. एक स्ट्रिंग को हम देख नहीं रहे थे. We were not looking at string because string is not a predefined or a primitive data type of your Java language, because this string is a class. String is not defined as a data type, but for string is considered as a class in your Java language. I repeat, ये जावा हमारा जावा लैंग्वेज में ये जो स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे मुझे ब्लू कलर में इसलिए नहीं दिखा रहा है कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रिंग है वो हमारा डेटा टाइप नहीं है, जो हमारा प्रिमिटिव यानी जावा लैंग्वेज का स्टैंडर्ड डेटा टाइप नहीं है, बल्कि ये एक जावा लाइब्रेरी का क्लास है. वो क्लास हमारा डेटा को होल्ड कर पा रहा है, इसलिए हम लोग ये डेटा टाइप के तरह यूज़ कर रहे हैं. वी आर यूजिंग इट एज डेटा टाइप, बट इट इज़ नॉट आवर स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ योर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So I just go back and show you. See, it is defined as your class. See, the string class to create or manipulate strings. The string is defined as a class. As in हम लोग use कर रहे थे date class in Java. Whenever you look at date class in Java, it is defined as a class in util package. Similarly, you have your string also defined as a class. Once you go ahead and type it, string class in Java. Once you look at your Oracle 7, it says your java.lang.string. As in you have your java.util.date, similarly you have your java.lang.string. Now हमारा जो string class है वो जावा के अंदर लैंग्वेज के अंदर लैंग के अंदर हमारा स्ट्रिंग क्लास अवेलेबल है, जिसको यूज़ करके हम लोग स्ट्रिंग्स क्रिएट कर पा रहे हैं, उसको मैनिपुलेट भी कर पा रहे हैं, यानी चेंजेस भी कर पा रहे हैं. वी आर एबल टू क्रिएट स्ट्रिंग्स एंड मैनिपुलेट स्ट्रिंग्स बिकॉज योर स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज ए क्लास इन जावा which is available in java.lang.string, which means your string class is available in a package called lang, and lang is available in a package called java. I repeat, जैसा हम लोग नोट हर दिन पेंट में देख रहे थे, so your java is like this, a bigger level class. Now a bigger level class or a package. Now this Java package has a sub package called lang, and lang has the sub package called your string. Now if at all you are using your string class, then it is necessary that you use something called lang, and which is available in your something called your Java. So to use this, we write it as something called import java dot your lang dot string. This is how we utilize your your package in order to utilize or in order to get the benefit of something called strings. So when you want to use strings, you have your package written as import java.lang.string. Once you look at, my string is available in something called import java.lang.string. जब हम लोग string को use कर रहे हैं, हमको लिखना है import java.lang.string लिखना है. लेकिन यहाँ पे मैं जो प्रोग्राम लिख रहा था, यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया है. I was not using lang.
It is because if at all you don't even use it, it will directly give the support of lang. अगर यहाँ पे लिखते हैं या नहीं भी लिखते हैं तो it will by default give you the support. Import java dot lang dot your string. Even if you mention it or if you don't mention it, it will by default give it. If at all you start writing it here, when you start writing it here, it will directly give it that it is part of your lang. It is not necessary that you write it. Without writing also, lang will support you. Your language library will support you. That's the advantage of using your lang in your Java programming. जब जावा में यूज़ कर रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि आप लैंग को इंपोर्ट करें. इंपोर्ट करे बिना भी हम लोग स्ट्रिंग यूज़ कर सकते हैं. आई रिपीट, विदाउट इवन यूजिंग योर पैकेज कॉल्ड import java.lang.your_string, you can use your string in your programming. String class can be utilized without writing your import statement also. This is an advantage of using strings. This is the support given by Java because you are using strings as a data type in your programming. ये डेटा टाइप की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमको ये सपोर्ट दिया जा रहा है कि हम लोग लैंग पैकेज मैंडेटरी लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो अभी हम लोग ये प्रोग्राम लिखते हैं और समझते कि ये स्ट्रिंग को कैसा यूज़ करें, या स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम लोग कैसा यूज़ करते हैं. सो इसको विल राइट इट प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द यूसेज ऑफ string class in Java. Java में हम लोग string class का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो अभी समझते हैं. So we have seen something called data types and also literals when we were working with data types. हम लोग देख रहे थे data type क्या होता है, literal क्या होता है. Literal वो होता है जो direct value होता है. Data type वो होता है वो उस type का literal को store करता है. यानी if at all I give it as int I equals to 10, my 10 will be called as literal, my 10 will be called as integer literal, and my I will be called as integer variable, and my int is called data type. I repeat, my int, यहाँ पे जो int दिया जा रहा है वो होता है data type, and यहाँ पे जो I लिख रहे हैं वो integer type का variable होता है, एंड जो यहाँ पे 10 दे रहा हूँ ये मेरा इंटीजर टाइप का लिटरल है. जो वैल्यू होता है उसको लिटरल कहते हैं. सो आई रिपीट, वी आर यूजिंग इट इंट एज योर डेटा टाइप हियर, आई एज योर वेरिएबल ऑफ द टाइप इंटीजर, एंड आई एम गिविंग 10 which is an integer value, so which is called your integer literal. I repeat, 10 is my integer literal here, I is my integer variable, and int is my data type here. यहाँ पे मेरा int data type है, आई मेरा इंटीजर वेरिएबल है, एंड 10 वैल्यू जो है वो इंटीजर वैल्यू है, बिकॉज ऑफ विच हम उसको बोलते हैं इंटीजर लिटरल. अभी ये इंटीजर लिटरल को मैं इंटीजर वेरिएबल को असाइन किया हूँ इन दिस एग्जाम्पल. नाउ सिमिलरली हमारा जो स्ट्रिंग का यूटिलाइजेशन होता है, स्ट्रिंग को भी हम लोग डेटा टाइप कहलाते हैं. इसलिए हम लोग जब यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं, स्ट्रिंग str equals to हम लोग देते हैं hello world. अब ये हो गया है हमारा वैल्यू, यानी ये जो स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है hello world, वो हो गया है मेरा स्ट्रिंग लिटरल, और यहाँ पे जो मैं str दे रहा हूँ वो हो गया है मेरा स्ट्रिंग वेरिएबल, और यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग दे रहा हूँ वो हो गया है मेरा डेटा टाइप. आई रिपीट, यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ whatever I am giving it here, it is my string literal, and str is my string variable, and a string is my data type in this case. If at all I look at, my string is data type here, str is my object or my variable here, and my hello world is a string literal that I am using it here. मेरा string का यूटिलाइजेशन ऐसा होता है कि मैं लिटरल के तरह लिटरल को इनपुट देते हुए मैं अपना स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज़ कर सकता हूँ. दिस इज़ द फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग माई स्ट्रिंग्स. ये हो गया है मेरा फर्स्ट वे ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग्स.
first way of using strings. And there is another way of using strings, that is I can use my string in another way. वो हो गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ second way of using strings. ये हो गया है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ string, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ string, यस कैपिटल होना चाहिए, string str1 equals to new string of, I give it here, I give the value as hello world. अभी यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ hello world 2 और यहाँ पे लिखता हूँ hello world 1, ताकि आपको समझ में आ सके, जब प्रिंट होता है तो आपको समझ में आ सके ये फर्स्ट वाला प्रिंट कर रहा है, ये सेकंड वाला प्रिंट कर रहा है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ hello world 1 और hello world 2. अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हो गया है मेरा स्ट्रिंग डेटा टाइप, यहाँ पे str हो गया है मेरा वेरिएबल, और यहाँ पे hello world 1 हो गया है मेरा स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल को स्ट्रिंग वेरिएबल को असाइन किया हूँ और मैं प्रिंट कर सकता हूँ स्ट्रिंग वेरिएबल को. जब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हेन आई राइट इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, व्हेन आई गिव इट द string is printed as data type, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस str. Once I run this, now I get the output as the string is printed as data type and it is printed as hello world 1, because I am using my string literal and I am assigning to my string variable which is of the type called string, of the data type called string. Now in this case what I am doing in the second case is, now this string is utilized as a class here, as in we have been using something called date in yesterday's program, as we have been using in yesterday's program. इसको यूज करने के लिए हमको लिखना है import java dot util dot star लिखता हूँ. अभी यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे डेट dt इक्वल टू न्यू डेट लिख रहे हैं. अभी ये क्या हो गया है, ये dt हो गया है मेरा ऑब्जेक्ट, ये डेट क्लास का ऑब्जेक्ट है dt. जैसा हमारा यहाँ पे डेट क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया है dt, हमारा स्ट्रिंग भी क्लास है. जैसा हम लोग यहाँ पे सीख रहे थे, स्ट्रिंग हमारा क्लास है, स्ट्रिंग इज आवर क्लास. as we have data as our class, our string is also a class. Now as we are creating an object for our date class, similarly we are creating an object for our string class. Now if at all you look at whatever I am using here, str1 is object, whatever I am using str here is a variable. I am using str as a variable in the first case, and in the second case I am using str1 as my object. As str1 is my object, जहाँ यहाँ पे मैं वेरिएबल की तरह यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहा हूँ. ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है, we'll write it as class name object equal to new class name, and हम लोग लिखते हैं ब्रैकेट. ये ऐसे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है ऑफ द क्लास नेम. यहाँ पे मेरा क्लास का नाम है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है str1. अभी str1 जो मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग ये पैरामीटर पास कर रहे हैं. अभी ये जो वैल्यू मैं पास किया हूँ, ये वैल्यू hello world 2 जो मैं पास किया हूँ, वो अभी होल्ड करता है हमारा str1. Now str1 is holding my value called your hello world 2. When you want to print it, you can print it as system dot out dot println, and we write it as the string is used as class object, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस str1.
जब मैं इसको ये निकाल दे रहा हूँ एंड जब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, सो आई विल बी प्रिंटेड एज द हेलो वर्ल्ड 2। ये जो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है ये वेरिएबल की तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, ये डेटा टाइप कंसिडर करते हुए ये वेरिएबल की तरह यूज़ कर रहे हैं और उसको प्रिंट कर रहे हैं। और सेकेंड सिनेरियो में हम लोग str1 को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर रहे हैं। सो वी आर यूजिंग एज क्लास ऑब्जेक्ट एंड वी आर यूजिंग एज डेटा टाइप। सो आइडियली देर आर टू वेज ऑफ यूजिंग योर स्ट्रिंग, एक डेटा टाइप की तरह यूज कर सकते हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट की तरह यूज करके, एक क्लास की तरह यूज करके हम लोग प्रोग्राम कर सकते हैं। I repeat, we can use it as a data type and we can use it as a class too. That's an advantage of using something called your strings. This is how you utilize your strings or you print your strings in your Java programming. एक Java प्रोग्राम में हम लोग strings को प्रिंट करने के लिए इस तरह हम लोग यूज करते हैं। So we'll just copy this ताकि मैं आपको आज के प्रोग्राम की तरह भेज सकूं। So this is how you can utilize your strings. Now I'll just go ahead and put it as string print. Now अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, अभी जो वैल्यूज मैं यहाँ पे डायरेक्टली दे रहा हूँ यानी स्टैटिकली दे रहा हूँ, अभी मुझे रीड करके इनपुट रीड करके यहाँ पे वापस देना है। जैसा हम लोग इंट वैल्यू को स्कैनर यूज करके रीड कर रहे थे, उसी तरह हम लोगों को अभी स्ट्रिंग को रीड करके यहाँ पे वैल्यू देना चाहिए। आई वॉन्ट टू रीड द स्ट्रिंग्स एंड देन प्रिंट इट। सो यहाँ पे लिखता हूँ अंडरस्टैंड the usage of strings in class by reading from keyboard। अभी मैं क्या लिखना चाहता हूँ, मैं रीड करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद वो जो रीड करता हूँ उसको प्रिंट करना चाहता हूँ। I wanted to read it from the keyboard and then print it onto the console. I repeat, I want to read it from the keyboard and then print it as my output. In order to do it, ये करने के लिए मैं अभी पहले मेरा वेरिएबल लेता हूँ string str। मैं इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग इट एंड देन आई यूज माई स्कैनर क्लास, स्कैनर sn equal to new scanner. I am able to use this because I am using import java.util.star. So I am writing it as system.in. This is how I read my value. Once I read my value, I want to inform the user कि please enter the string. मैं यूज़र को बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ एंटर द स्ट्रिंग बोल के इंस्ट्रक्शन बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आई राइट इट system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और इसके अंदर मैं लिखता हूँ प्लीज़ एंटर द स्ट्रिंग, प्लीज़ एंटर द स्ट्रिंग। इसके बाद मैं लिखता हूँ आफ्टर राइटिंग दिस आई विल राइट इट एज आई वॉन्ट टू रीड इट। मैं रीड करना चाहता हूँ, रीड करने के लिए हम लोगों ने पहले सीख चुका है कि str इक्वल्स टू sn डॉट नेक्स्ट। अभी जो वैल्यू मुझे लेना है, नेक्स्ट इंट अगर लेते हैं तो वो इंटीजर वेरिएबल बनता है। अभी मुझे रीड करना है नेक्स्ट स्ट्रिंग, लेकिन यहाँ पे मुझे नेक्स्ट स्ट्रिंग है ही नहीं, आई कैन नॉट राइट इट एज नेक्स्ट स्ट्रिंग, तो मैं इसको कैसा यूज कर सकूं? सो आई विल राइट इट एज नेक्स्ट। बस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट। जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट लिख रहा हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट जो मैं रीड कर रहा हूँ वो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जो टाइप दे रहा है वो मुझे स्ट्रिंग टाइप दे रहा है। अगर मैं रीड कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट टाइप जो दे रहा है वो स्ट्रिंग टाइप दे रहा है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ कि वो इंट टाइप हो, फ्लोट टाइप हो या कुछ और टाइप हो। वो डिफ़ॉल्ट टाइप जो नेक्स्ट मेथड मुझे डिफ़ॉल्ट टाइप जो दे रहा है वो स्ट्रिंग टाइप का दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ sn डॉट नेक्स्ट। So I am getting the default type, the next is giving me default type as string, so I am not converting it or I am not using it as next in next float, ऐसे यूज नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे चाहिए है स्ट्रिंग टाइप का डेटा और जो मेरा नेक्स्ट देता है वो स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा देता है, इसलिए आई एम राइटिंग इट एज sn डॉट नेक्स्ट। अभी ये रीड कर लिया है,
अभी इसको प्रिंट करने के लिए मैं लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट println, और इसके बाद मैं लिखता हूँ I'll write it as the value read from keyboard is, I'll write it as plus str. Now I'm using this str as data type here. I'm using string str which is like data type, and once I run it तो वो इंटर करने के लिए बोलता है से I'll write it as hi friends, how are you. जब मैं इसको एंटर करता हूँ सो वापस मुझे ये वैल्यू जो दे रहा है इट इज़ गिविंग मी एज हाई. यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इट इज़ गिविंग ओनली हाई. व्हाई इट इज? बिकॉज इट इज़ रीडिंग टिल द एंड ऑफ दैट वर्ड ओनली. सो ये जो नेक्स्ट वैल्यू दे रहा है इट इज़ प्रिंटिंग टिल दैट वर्ड ओनली. मुझे वो एक ही वर्ड रीड कर रहा है. सो टू गो अहेड एंड गेट द नेक्स्ट वैल्यू, और यू कैन ऑल्सो राइट इट एज, यहाँ पे मुझे एक ही वैल्यू देने के लिए वे आई राइट इट एज हाई फ्रेंड्स, हाउ आर यू. देन अगर एंटर करता हूँ तो मुझे एक ही वैल्यू दे रहा है हाई फ्रेंड्स हाउ आर यू. This is how I get the next value by reading something called your scanner. Scanner will read one value. That's something that we have disadvantage with scanner when we are using strings. So इसको रीड करने के लिए और कई तरीके हैं, वो तरीके हम लोग एक के बाद एक देखते जाते हैं. But for you understand, this is how we are reading the values using your scanner. अभी ये स्कैनर यूज करके हम लोग एक वैल्यू रीड कर लिए हैं, एक वैल्यू को प्रिंट कर लिए हैं एज इन लाइक यूजिंग योर डेटा टाइप. अभी हम इसी प्रोग्राम को क्लास के तरह भी यूज कर लेते हैं. विल ट्राई टू यूज इट विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑल्सो. सो इसलिए हम लोग क्या लिखते हैं, विल टेक इट एज अनदर ऑप्शन. अभी इसके बाद हम लोग लिखते हैं आफ्टर गिविंग सम स्पेस, आई विल कॉल इट एज स्ट्रिंग str1 equals to new string, and we try to pass some value in this. अभी अगर यहाँ पे वैल्यू पास करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वॉट एवर वी रीड इट फ्रॉम द कीबोर्ड दैट वी विल पास इन टू दिस. सो वॉट वी विल राइट इट नाउ विल राइट इट एज we can directly write it as your new scanner of system डॉट इन. जब ऐसा लिख देते हैं तो इट विल गिव मी द वैल्यू इनटू द स्ट्रिंग. बट इफ एट ऑल यू लुक एट, इट सेज द ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. वंस यू लुक एट इट, you should get this as a string format, but by default it is giving me as an object. So object cannot be passed into it. So इसको, ये जो object रहेगा उसको हम लोग convert करना है. So you cannot use your class directly in this case. आज के जो programs करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ऐसा class को हम लोग utilize नहीं कर सकते. तो उसको कैसे convert करके करना है, That's what we will do it in our class today. आज के क्लास में हम लोग समझ सकेंगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करना है. इसको हम लोग अभी ये जो एरर आ रहा है इसको सॉल्व करने के लिए कैसे करना है. All that we will learn it in your today's class. So इसलिए by default, in order to read the value, you read it as your scanner and using your data type, and then you print it onto the output. In order to use it as a class, we will see it as the last program today or last program with your strings. We will see it either today or in Monday's class about how to convert your object into your string and string into your object. But for today we will learn how to convert between a string to integer to string,
all those conversions we will learn it in today's class. आज हम लोग ये स्ट्रिंग को डेटा टाइप की तरह कैसे यूज करते हैं वो समझते हैं आज के दिन में, और कल के दिन में यानी सेकेंड पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग्स जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग ये ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं वो सब कुछ हम लोग सीखेंगे। आज के दिन में ये स्ट्रिंग को डेटा टाइप में कैसा देख सकते हैं, जो दो तरीका मैंने अभी पहले प्रोग्राम में बताया था कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर सकते हैं और हमारे वेरिएबल की तरह यूज कर सकते हैं। सो आज की क्लास में पूरा हम लोग वेरिएबल की तरह कैसा यूज कर सकते हैं वो एग्जांपल्स देखेंगे, और कल के क्लास में ये ऑब्जेक्ट को कैसा यूज कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे, यानी कल यानी मंडे के क्लास में। In Monday's class, we'll understand how to use this string as an object, how to convert object into a string, string into an object, all that we will look at in Monday's class. But for today, we will look at string as your data type. So this is your another program that we have been looking at in today's class, the second program, which is your input string. Now we look at the second program in order to create a string. So till now we have seen two ways of doing it, and the third way, if at all you look at the definition of the string in your by your Oracle, it says string is nothing but a widely used sequence of characters, which means collection of characters is considered to be something called your array. यहाँ पे अगर हम लोग is considered as string. Collection of characters is considered as your string. अभी उसको यूज करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करके समझते हैं what is this definition. ये definition को समझने के लिए हम लोग और एक प्रोग्राम करते हैं, यानी program to create a string by using collection of characters. So now to use it हम लोग क्या करते हैं, एक character array लेते हैं. So I'll call it as character array. Character array हम लोग ऐसा लिखते हैं ARR, which is given as square brackets. This is how we create an array. Tuesday we will have arrays class. अभी बस इतना ध्यान रख लीजिएगा कि array ऐसा बनता है. सो डोंट वरी अगर एरे से अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, प्लीज़ डोंट वरी, बिकॉज ट्यूसडे के क्लास से हम लोग एरे सीखेंगे. अभी बस इतना सीखो, एरे एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ आइटम्स होते हैं. सो अभी मैं यहाँ पे कलेक्शन ऑफ आइटम्स दे रहा हूँ, यानी मेरा कैरेक्टर कलेक्शन दे रहा हूँ. सो आई विल गिव इट एज H, H एक आइटम हो गया है, E एक आइटम हो गया है, L एक आइटम हो गया है, और एक आइटम हो गया है L. मैं यहाँ पे हेलो प्रिंट करना चाह रहा हूँ, सो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सारे कैरेक्टर्स जो हेलो से हेलो बनता है. सो अभी मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कैरेक्टर एरे, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ये पूरा 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स हो गए. वी हैव गॉट 5 कैरेक्टर्स, H E L L O. All the 5 characters are here. Now after having these characters, what is that I wanted to do is I want to convert these characters into an array. ये into characters array into a string. ये जो array of characters जो रहेंगे, यानी ये जो collection of characters रहेंगे, इसको हम लोगों को string में convert करना है. उसको convert करने के लिए बहुत आसानी से हम लोग convert कर सकते हैं, यानी string str equals to new string of. ध्यान रख लीजिएगा, ये स्ट्रिंग में यस को कैपिटल होना चाहिए. जब हम लोग इंट को लिख रहे थे, इंट में आई स्मॉल होना चाहिए, लेकिन हम लोग जब स्ट्रिंग को यूज कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में यस कैपिटल होना चाहिए. यू शुड हैव एस एस कैपिटल्स इन योर स्ट्रिंग बिकॉज इट इज अ क्लास. नाउ इन दिस आई जस्ट पास माई एरे. इट्स वेरी सिंपल. यू हैव कन्वर्टेड योर collection of characters into an array, which means you gave this collection of characters into an array. Now the array variable is passed here. Once you have passed, if you go ahead and print str, the object of my string class, that is system.out.println,
जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, जब मैं ये str को प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके मुझे आउटपुट दे देगा, ये पूरा जो वर्ड बन के मुझे प्रिंट कर देगा। Whenever you run this, ये कलेक्शन, ये जो एक एक आइटम है वो मिल के एक वर्ड बन जाएगा और वो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे और भी लिखता हूँ कामा, यहाँ पे कुछ एम्प्टी स्पेस दे देता हूँ और बाद में लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, W कामा O कामा R कामा L कामा D, T भी कैरेक्टर देना चाहिए। अभी अगर प्रिंट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे दो वर्ड आ जाएंगे, यानी हेलो स्पेस वर्ल्ड आ जाएगा। This is how you make use of something called your collection of characters and you convert it into a string. हम लोग अभी तीन तरीके के देखे हैं। एक हो गया है डेटा टाइप की तरह यूज करना, यानी स्ट्रिंग str देते हैं। So which means we have seen first type as you use it as data type, that is string str. This became one type of using it, and the second type of using it is string str equal to new string, and the third type that we have used was you give it as your string str equal to new string, and इसमें जो पैरामीटर दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे थे डायरेक्टली, यहाँ पे हेलो करके दे रहे थे। दिस इज हाउ यू आर यूजिंग योर स्ट्रिंग, एंड हियर यू आर गिविंग इट एज इक्वल टू हेलो, एंड यहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर एरे को पास कर रहे थे। वी आर पासिंग एन एरे हियर। So this is how, these are the three different ways that you create a string. These are the three different ways that you create a string. The first way is you use it as data type. Second is you create an object and pass a string, and the third thing is you create an object and pass a character array. These are the three different ways that you can use in order to create an array. So this is how we create an array by using collection of characters. ऐसा यूज करके हम लोग अपना कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग के तरह बना सकते हैं। So I repeat, this is how you create your program with a collection of characters. Collection of characters. ये हो गया हमारा थर्ड वे ऑफ क्रिएटिंग द स्ट्रिंग। अभी हम लोग सीखते हैं हाउ टू कन्वर्ट योर स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर और इंट इनटू ए स्ट्रिंग। पहले हम लोग देखते हैं। सो राइट ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू एन इंटीजर वैल्यू। सो अभी हम लोगों को करना है यहाँ पे एक स्ट्रिंग को इंटीजर की तरह कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं योर मेथड ऑफ कन्वर्टिंग योर स्ट्रिंग इनटू इंट। हम लोगों को स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करने के लिए भी कई मेथड है। हम लोग एक पहला मेथड देखते हैं जहाँ पे हम लोग एक स्ट्रिंग को लेते हैं, यानी स्ट्रिंग str इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे देते हैं 1 2 3 4। एक स्ट्रिंग को ले लिया है हम लोग जो 1 2 3 4 है। इसको अभी हम लोगों को कन्वर्ट करना है इंटीजर वैल्यू में। अभी ये अगर देखते हैं तो ये इंटीजर वैल्यू है, लेकिन स्ट्रिंग के तरह लिखा हुआ है। द वैल्यू ऑफ 1 2 3 4 इज इंटीजर, बट एज इट इज डिक्लेयर्ड इन डबल कोट्स इट बिकम्स ए स्ट्रिंग। अगर ये 1 2 3 4 अगर देखते हैं तो ये इंटीजर नहीं होता है, ये होता है स्ट्रिंग टाइप। अभी ये स्ट्रिंग टाइप को हम लोगों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग लिखते हैं, सो वी विल टेक अनदर वेरिएबल कॉल्ड इंट आई। यहाँ पे हम लोगों ने एक इंट आई करके एक वेरिएबल ले लिया है। अभी हम लोग करते हैं आई इक्वल टू योर इंटीजर डॉट पार्स इंट ऑफ, ये जो वैल्यू हम लोग str में दिए हैं वो यहाँ पे देते हैं।
जब हम लोग लिखते हैं पार्स इंट मेथड, ये जो पार्स इंट मेथड क्या करता है, ये जो इंटीजर यहाँ पे स्ट्रिंग दे रहे हैं वो स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं. I repeat, this parseInt method will try to give us an output whether we are able to convert it into the integer type or not. If we are able to convert it, then it will convert it. If it is not, then it will raise an error. अभी मैं इसको print करता हूँ. I will print it. So once I just go ahead and print it, system dot out dot println. And then I'll give it as str. Now once I run this, then see यहाँ पे 1 2 3 4 आ गया है. सर लेकिन हमको कैसा पता चलेगा सर ये स्ट्रिंग है कि इंट है? सर अभी तो यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट हो रहा है, बट हाउ यू कैन कंफर्म दैट इट इज अ स्ट्रिंग और एन इंटीजर? सर अगर यहाँ पे इंटीजर वैल्यू, यानी अगर मैं यहाँ पे दूसरा वैल्यू लेता हूँ इंट j इक्वल्स टू 10, अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ j, अगर j को भी प्रिंट करता हूँ तो ये 10 ही प्रिंट कर रहा है. अगर मैं यहाँ पे ये पार्स करने से पहले ये जो यहाँ पे स्ट्रिंग को दे रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग टाइप हो गया है. अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ आई, सर जब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ str को प्रिंट कर रहा हूँ तो 1 2 3 4 आ रहा है विच इज a string type. When I am printing I, it is giving 1 2 3 4. Sir, how could I get this difference? To get this difference, what we will do is we convert a string into integer and perform addition with integer value. Now we will understand the difference. अभी हमको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है. So अभी हम लोग क्या करेंगे, we have a string variable here, we have got an integer variable here and another integer variable. Now what I'll do, I said I equal to integer dot parse int of str. जब मैं यहाँ पे इंटीजर को पार्स कर रहा हूँ, जब मैं यह बता रहा हूँ कि whenever I am writing it as parse dot int of string, then I am telling you that that string is converted into integer. This is what I confirm. When I confirm it, when I give it as j equals to j plus I, then it should perform proper addition value, and when I print my j value, it should give me 123 plus 10, which should be 1244. If that is happening, अगर 10 ऐड हो गया 1234 को, अगर हम लोग 10 ऐड कर देते हैं तो हमको हो जाएगा 1244. अगर वो होता है तो मेरा स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो गया है, which means the int is which means the string is converted into integer. So अभी हम लोग इसको प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि वो हो गया है कि नहीं. Now once I print my j here, अगर हमारा j को अगर यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, see it is 1244, which means my string is converted into integer and then integer addition is performed. अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पे देख लेते हैं, यानी हम लोग देखते हैं j इक्वल्स टू j प्लस str. जब हम लोग ये लिखते हैं तो मुझे यहाँ पे एरर आ रहा है. एरर इसलिए आ रहा है बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग ए स्ट्रिंग. हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग को प्रोवाइड कर रहे हैं, str इज अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग को हम लोग इंटीजर से ऐड नहीं कर पा रहे. सो दिस इज व्हाट इज एन एरर. सो विच मीन्स यहाँ पे मेरा जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो स्ट्रिंग वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो रहा है. जब ये कन्वर्ट हो रहा है तो हम लोग ऐड कर पा रहे हैं. सो दिस इज हाउ वी कन्वर्ट a string value into an integer value. I repeat, this is the way that we convert a string value into an integer. एक string को हम लोग integer में convert करने के लिए हम लोग लिखते हैं integer dot parse int. Hope everybody is clear.
एंड द सेम थिंग अभी हम लोगों ने जो किया है इसको हम लोग दूसरे तरह में भी करते हैं. वी डू दिस इन अनदर टाइप ऑल्सो. सो अभी हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं. So we write it as int parse. Now we'll look at one important thing here. अगर यहाँ पे हम लोग इंटीजर वैल्यू नहीं देते हैं बल्कि हेलो देते हैं, जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमको एक एरर आएगा. वो एरर हमको ये बताएगा कि आई कैन नेवर कन्वर्ट माई हेलो इनटू इंटीजर वैल्यू, बिकॉज अगर ये इंटीजर में बन सकता है तो ही वो पार्स करेगा. इफ एट ऑल आई नीड टू पार्स इट देन these values should be digits which are given in string format. अगर यहाँ पे अगर हम लोग कुछ कैरेक्टर देते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ कैरेक्टर देते हैं तो you will get an error because it cannot be passed. A character value can never be passed into an integer type, which means यहाँ पे होना चाहिए integer values given in double quotes. Only then your integer dot parse int will work. Hope I am clear. एक कैरेक्टर वैल्यू को कभी हम लोग पार्स नहीं कर सकते. इंटीजर वैल्यू कभी अगर स्ट्रिंग के तरह दिया हुआ है तो उसको हम लोग पार्स कर सकते हैं. Whenever the digits are given in double quotes, only then you can parse or you can convert a string into an integer. Right? This is how we do it. Now the same thing can be done with the help of a different option. That is, you can just go ahead and convert it as, if at all I have another value I, now the same thing can be written as, जैसा हमारा पुराना प्रोग्राम था उसी को यूज कर लेंगे. जैसा हमारा दो वैल्यू है इसको हम लोग ऐसे यूज कर लेंगे. एंड यहाँ पे जो हम लोग I को यूज कर रहे हैं, I इक्वल टू जैसा हम लोग लिख रहे थे इंटीजर डॉट पार्सिंट, इसी तरह हमको दूसरा मेथड भी है वो इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ. एंड जब हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग पास करते हैं str. ये दूसरा मेथड है जिसको यूज करके हम लोग ये स्ट्रिंग को अपना इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं. I repeat, we use the second method to convert string into an integer is value of. There are two methods. The first is parse int method and the second one is value of. Once if at all you perform the operation j equal to j plus I, and then once you give it as system dot out dot println, and in this if at all you give it as j, then you get 1 2 4 4. So the two methods that we use. So अगर हम लोग नोटपैड में देखते हैं, two methods to convert string into an integer are, first one is integer dot parse int, and the second option that we have it is integer dot your value of. These are the two methods that we use in order to convert your string value into an integer value. So hope everybody is clear. So this is how we convert an integer value into a string value. Now this is how we convert a string value into an integer value. Now we try to look at the methods which convert your int value into your string value. Now we look at the option in order to convert your int value into your string value. To do it, now we'll just go ahead and copy this also. We'll copy it as value of. हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे और लिख लेंगे कि value of method. हो गया है हमारा वैल्यू ऑफ मेथड. अभी हम लोग देखते हैं हमारा जो हम लोग अभी स्ट्रिंग को लेते हैं.
अभी हम लोग int को लेते हैं और कन्वर्ट करते हैं string। अभी हम लोग इंटीजर वैल्यू को लेके हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। सो नाउ वी टेक वेरिएबल int I इक्वल्स टू 1 2 3 4 1 2 3। अभी ये 1 2 3 को हम लोगों को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट इट आई राइट इट एज स्ट्रिंग str इक्वल्स टू string dot your value of string dot value of, and I'll pass my variable I in this. I just go ahead and pass my variable I in this. Once I pass it, now I get my 1 2 3 converted into a string. If at all I look at, I'll take another variable string str1, string str1 equals to, I'll put it as hello. अभी मैं इसको ऐड करके देखता हूँ। सो आई पुट इट एज str1 इक्वल्स टू str1 प्लस str, विच मीन्स स्ट्रिंग कंकैटिनेशन, यानी दो स्ट्रिंग को ऐड कर रहा हूँ। ऐड करने से क्या होता है, अभी जब मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ, यानी मैं दो स्ट्रिंग को ऐड करता हूँ, यानी हेलो प्लस वर्ल्ड करता हूँ। जब ये करता हूँ तो मुझे आएगा हेलो वर्ल्ड, ऐसा मुझे प्रिंट होगा। सो नाउ दैट इज व्हाट आई वांटेड टू गेट इट आउट ऑफ इट। अभी मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, वंस आई जस्ट गो अहेड एंड प्रिंट इट, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, and in this once I pass my str1, once I run this, see I'll get this as your hello 1 2 3. I'm able to concatenate, add my strings, because my 1 2 3 is an integer which is converted into string. The method that is used to convert into a string is value of method. The first way of converting it is using value of method. So now we write it. Now this is how we convert an integer value into a string. Now we have seen the first method, methods to convert into a string. उसका first method हो गया है. The first way of doing it is your string dot your value of, and then you pass your variable. This O should be capital. Value of. The first method that we have seen is value of method. अभी इसको हम लोग यूज कर, अब हम लोग कॉपी कर लेते हैं ताकि I can send this program to you. Value of str. Now उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, once this conversion is done with the help of value of, now we'll try to look at another method also. The another method of converting it is using a method called toString. There is another option called using it with the help of something called toString. So what I will do is I'll call this as string str equals to, I just write it as my integer dot your toString of whatever the value that I have passed it, I will be given into that. So this is a method called toString method which will convert my integer into, integer dot toString is a method which will convert my integer into a string. Now ये जो I value है, the integer value है 1 2 3 that gets converted into a string. अभी अगर मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, यानी string 1 equals to string 1 plus str. अभी इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, यानी system डॉट आउट डॉट println. तो इसके अंदर मैं जब str1 पास कर लेता हूँ तो it will give me something called hello 1 2 3. Hope everybody is clear. So this is how we use something called integer dot toString method.
So the next method that we can use in order to convert integer into string is we use something called integer dot your to string. This is the method we use it in order to convert your integer into a string. Now we'll try to look at the third way of doing it. So first let me just copy this so that I can send this program to you. New. We'll try to copy this and put it as your to string. Now this is how we use something called toString method in order to convert an integer into string. एक इंटीजर को स्ट्रिंग के तरह कन्वर्ट करने के लिए हम लोग दूसरा तरीका यूज कर रहे हैं toString मेथड. पहला तरीका था your value of और दूसरा तरीका है toString. अभी we look at the third way of doing it. The third way of converting your integer into a string. To do it, there is something called format specification. वो format specification कैसे करते हैं? We'll now look at it. String str, इसको मैं थोड़ा अंदर लिख लेता हूँ ताकि everything would be in the same line. String str is equal to your string dot we have something called format. एंड जब मैं इंटीजर को दे रहा हूँ वॉट एवर द इंटीजर दैट आई एम गिविंग इट दैट शुड बी गिवन. हम लोग सी लैंग्वेज में यूज कर रहे थे इन स्कैनएफ. वेन एवर यू आर रीडिंग एन इंटीजर वैल्यू इन स्कैनएफ यू आर यूजिंग इट एज परसेंटाइल डी बिकॉज इट इज एन इंटीजर. सो इसी तरह हम लोग दे रहे हैं कामा आई. वी वर गिविंग द आई वैल्यू विद द हेल्प ऑफ परसेंटाइल डी विच इज योर फॉर्मेट. अभी ये फॉर्मेट में जो उसको ले रहे हैं लेके हम लोग हाँ अपना स्ट्रिंग के तरह कन्वर्ट कर रहे हैं. वी आर रीडिंग इट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन एंड वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू स्ट्रिंग टाइप. वॉट एवर द इंटीजर फॉर्मेट इज देयर दैट इज कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट. एंड नाउ वंस वी जस्ट गो एंड डू द ऑपरेशन दैट इज str1 इक्वल्स टू str1 प्लस str. अभी ये मुझे देगा हेलो प्लस स्ट्रिंग हेलो 1 2 3. इसको अगर मैं प्रिंट करके देखता हूँ कि मेरा एडिशन करेक्ट हो रहा है कि नहीं, कंकैटिनेशन करेक्ट हो रहा है कि नहीं, whether my concatenation is properly happening or not, I will check it with this. So I'll put it as str1. जब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, whenever I'm printing this, see I get the same output because my concatenation is working, which means I am able to convert my integer value into a string value. मेरा integer value के मैं string में convert कर सक रहा हूँ. I am able to properly convert my integer value into a string value with the help of formatting. So the third way of converting your integer value into a string value is by writing it as string dot format of the value which is nothing but given in the format which is nothing but your percentile d comma the number value. This is how we convert your integer value into your string. So till now whatever we have been looking at the 2 and 3 methods, the 3 methods that are used to convert your int into string are using string dot value of and integer dot toString and string dot format. Similarly, when you are converting your string into integer, you have got your 2 methods. So when you are converting it from string to int, you are using 2 methods. Similarly, when you are converting it into from int into string, you are preferably using 3 methods. You can use the third method in your strings also, but there is a problem there. So we are not doing it right now. We'll do it down the line when we are learning your objects and all. That is in Monday's class. We'll look at the third method also with the help of your strings. That is string to int conversion. So today we have learned 2 methods of your string to int and 3 methods of int to string, and we have seen string as an object and string as a data type. And we have also seen the third way of using the string, that is collection of characters are converted into your strings. Now this is what I have it for the conversions. We'll look at another conversion after taking. Hope everybody have given your attendance. सब लोगों ने attendance दे दिए होंगे. So before we continue with our class, आप सबको अभी instruction दे रहा हूँ. Please look at it.
मैंने अभी तक कई बार ये बता चुका हूँ, आई हैव टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स, लेकिन बहुत लोगों से ये मुझे क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपके जितने भी पीडीएफ्स होंगे, यानी जो भी मैं पीडीएफ्स भेज रहा हूँ 2 दिन से, यानी 23rd से, सब कुछ ये वीडियो के नीचे दिए गए हैं। All the PDFs are given under the video. See, whatever the video that you are seeing every day will be there in this channel, NASCOM Foundation Educational Channel. Under this channel जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, हर दिन के जो प्रोग्राम्स मैं वीडियो में बता रहा हूँ, ये वीडियो में बताने के बाद जो रहेगा वो यहाँ पे होंगे। सो ये वीडियो में जो आज के से समझो कि आज का वीडियो है, वो वीडियो के नीचे एक लिंक रहेगा, ये लिंक में आज के प्रोग्राम्स पूरा रहेंगे। सो ये कल का वीडियो में जो दिखा रहा हूँ, ये इसमें पूरा ऐसे रहेंगे। सो जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो पढ़ाने का जो मटेरियल रहेगा वो उसके नीचे रहेंगे। सो वॉट एवर द वीडियो दैट वी आर शोइंग इट टू यू, वो वीडियो के नीचे आपका वो फाइल रहेगा। सो आई रिपीट, एवरी डे जो भी वीडियो रहेगा, वो वीडियो लिंक में जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो वहाँ पे आपको हर दिन का प्रोग्राम्स मिलेंगे। वी विल नॉट शेयर इट इन योर रेस्पेक्टिव कैजला ग्रुप्स। आपके असाइनमेंट्स भी वहीं पे रहेंगे। अंडर द वीडियो यू विल हैव योर असाइनमेंट्स, अंडर द वीडियो यू विल फाइंड योर प्रोग्राम्स। प्लीज़ डू रिमेंबर, ये नोट कर लीजिएगा कि वीडियो के नीचे एक लिंक रहेगा, वो लिंक में आपके प्रोग्राम्स मिलेंगे, हर दिन के प्रोग्राम्स मिलेंगे। जो वीडियो रहेगा उस दिन का वीडियो के नीचे उस दिन के प्रोग्राम्स रहेंगे। एवरी डेज वीडियोज आर देयर बिलो द यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन। In the YouTube channel description, you will find everyday programs there itself. So we'll just look at the next program. The next program that we have it is, ये जो हम लोग हर चीज़ जो यूज़ करते हैं, यानी say for example we make use of something called character, ch equals to a। देन ए का कुछ वैल्यू होता है कंप्यूटर में, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं ASCII वैल्यू। से अगर हम लोग ऑनलाइन पे चले जाते हैं, वंस वी गेट इनटू ऑनलाइन, इन द ऑनलाइन से कन्वर्ट वैल्यू इनटू ASCII। देन अगर यहाँ पे देख लेते हैं, सी कन्वर्टिंग ए वैल्यू इनटू ASCII वैल्यू, से मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ए, एंड जब उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे देख रहा हूँ तो मेरा वैल्यू हो गया है ASCII वैल्यू 97। सो दिस इज हाउ यू कन्वर्ट योर वैल्यू इनटू एन ASCII वैल्यू। जब मैं यहाँ पे देता हूँ 1 कैरेक्टर, देन 1 कैरेक्टर हैज़ एन ASCII वैल्यू 49। सिमिलरली ए हैज़ एन ASCII वैल्यू, ए हैज़ एन ASCII वैल्यू कॉल्ड योर 97। Similarly, B has an ASCII value 98. Similarly, C has an ASCII value 99. So ये जो नंबर ASCII value होता है, that value is being converted into strings. जो भी हम लोग ASCII values होते हैं, वो ASCII value को अभी तक हम लोगों ने देखा है इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए और स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रोग्राम देखे हैं। अभी हम लोग ये कन्वर्ट करते हैं कि इंटीजर को नहीं कन्वर्ट करते हैं, बल्कि एक ASCII वैल्यू को, जो भी ASCII वैल्यू होता है उसको हम लोग अपने स्ट्रिंग वैल्यूज़ में या कैरेक्टर वैल्यूज़ में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि बहुत कई हम लोग यूज़ करते हैं इन रियल टाइम, कॉमन लैंग्वेजेस में, कॉमनली हम लोग फ्रेंड्स के बीच में यूज़ करते हैं, नंबर के हिसाब से हम लोग कैरेक्टर को लिखते हैं। सो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं जो नंबर को रीड करके हम लोग वो कैरेक्टर में कन्वर्ट करके हम लोग बात करते हैं। सो इन सच काइंड ऑफ थिंग्स, हाउ टू कन्वर्ट योर ASCII वैल्यू, यानी नंबर को हम लोग कैरेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज व्हाट वी राइट इट इन आवर प्रोग्राम नाउ। सो विच मीन्स प्रोग्राम टू कन्वर्ट योर ASCII to string. We want to convert our ASCII values into your string. To do it, हम लोग कुछ ASCII values यहाँ पे ले लेते हैं. We take some ASCII values here.
So we'll write it as int कुछ I करके हम लोग एक array ले लेते हैं, as in we have taken the character string, यहाँ पे हम लोग integer string ले रहे हैं और इस string के अंदर हम लोग लिख रहे हैं we are giving it as your 65, 79 and then 98 and then we are giving it as 75 and then we are giving it as 115. We have given some values here which will give me the ASCII values of it. अभी मैं एक string भी ले रहा हूँ, string str is equal to null, यानी कुछ वैल्यू नहीं है उसका अभी, बाद में वो वैल्यू अभी मुझे मिल जाएगा और I can also write it as string str. एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई विल मेक यूज ऑफ माई फॉर लूप in order to convert my integer values or my 65, 79, all these values into my string or into my character and then convert it into string. To do it, I'll make use of for int x colon your I, which means for all the values of I. ये बताता है कि for all the values of I, ये बताएगा for all the values of I my x will rotate. ये जितने भी values रहेंगे, first value, second value, third value, fourth value, fifth value, ये first value x में जाएगा, execute होएगा, second value फिर से x में जाएगा, execute होएगा, ऐसे हमारा for loop execute होता है. Now what I'll do it is I'll take it as str, which is my string, is equal to, I'll put it as character dot your toString of, I want to give it as my character of x. वो जो x वैल्यू हर वक्त रोटेट होता है उसको मैं कैरेक्टर की तरह कन्वर्ट करना चाहता हूँ. ये जो मेरा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, इसको मैं कैरेक्टर की तरह कन्वर्ट करना चाहता हूँ. कन्वर्ट करके उसको मैं टू स्ट्रिंग बनाता हूँ. सो वो कन्वर्ट करते हुए स्ट्रिंग की तरह ऐड होते जाता है, यानी फर्स्ट वैल्यू आता है, उसके बाद सेकंड वैल्यू जुड़ जाता है, उससे फिर से थर्ड वैल्यू जुड़ जाता है, फोर्थ वैल्यू जुड़ जाता है. यहाँ पे 5 वैल्यू है, एक के बाद एक कंकैटिनेट होते हैं, अपेंड होते जाता है, एक के बाद एक अपेंड होते जाता है. दैट इज हाउ वी यूज समथिंग कॉल्ड योर कैरेक्टर डॉट टू स्ट्रिंग. ये फॉर लूप के जरिए हम लोग वो अपेंड करते जा रहे हैं. एंड उसके बाद जब भी इसको प्रिंट करते हैं, सो वील प्रिंट इट एज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. जब इसको प्रिंट कर रहे हैं तो वील प्रिंट इट एज str. जो भी हमारा नया स्ट्रिंग बनता है वो बनते ही हम लोग प्रिंट करते जाते हैं. सो वंस वी लुक एट दिस, सी मेरा फर्स्ट कैरेक्टर था a, सो सेकेंड कैरेक्टर था o, थर्ड कैरेक्टर था b. सर a का तो 97 था, सो यहाँ पे वॉट एवर वी हैव बीन लुकिंग एट was if at all I give it as a, it is 97, बट लेकिन यहाँ पे जो मैं दे रहा हूँ it is a small a, लेकिन यहाँ पे प्रिंट हो रहा है कैपिटल ए. सो यहाँ पे आके मैं प्रिंट कर लेता हूँ मेरा कैपिटल ए. देन यहाँ पे देख लीजिएगा इसका वैल्यू है 65. सो यहाँ पे मैं दिया था 65 तो ए आ गया है. सो उसके बाद जो 79 है, 79 वैल्यू देता हूँ मैं यहाँ पे, आई गिव इट एज 79 हियर, so which is capital O, so I'll give it as capital O here, so I get it as 79. So this is how, which means I'm converting my values into your ASCII, and those ASCII values are printed as strings. This is how I print string one after the other. ये एक के बाद एक प्रिंट होते जा रहा है. If at all you look at, I'm writing it like this. If at all you want to concatenate them, you can put it as str plus, you can write all of this, so that वो a o b k s करके एक ही लाइन में आएगा. Hope everybody is clear. These are the ASCII values, and those ASCII values are converted into individual strings. This a is a separate string, o is a separate string, b is a separate string, and all those are printed. Hope I am clear. So this is how your ASCII values are converted into your strings.
Now the same way you can convert your strings into ASCII values also. So all those things you can do it. I hope अभी जो हम लोगों ने ASCII को string में convert किया है, आज के दिन में आप ट्राई करो कि string को ASCII में कैसे convert कर सकते हैं. You try this at your home. सो अगर नहीं होता है तो मैं मंडे के दिन क्लास में बता दूंगा, लेकिन आप ट्राई करो कि स्ट्रिंग को ASCII में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव इट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट योर ASCII इनटू स्ट्रिंग. सो दिस इज ए प्रोग्राम टू कन्वर्ट योर ASCII वैल्यूज इनटू ए स्ट्रिंग वैल्यू. सो विल पुट इट. ये मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ. So ये हो गया ASCII वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना. दिस इज हाउ वी कन्वर्ट योर ASCII वैल्यूज इनटू स्ट्रिंग्स. नाउ वी विल ट्राई टू मेक यूज ऑफ योर स्ट्रिंग एडिशन. So we'll try to look at addition of two strings or concatenation of two strings. Write a program to concatenate two strings. To do it, what we can do is we can take string str1 equals to hello, and we will make use of another string str2 equals to world, and इसको अगर प्रिंट कर लेते हैं, सो ये एक्स्ट्रा हो गया है, मैं ये निकाल रहा हूं. अभी मेरे पास है दो स्ट्रिंग, एंड अगर इन दोनों को अगर कंकैटिनेट करने के लिए मुझे चाहिए है, सो आई कॉल इट एज स्ट्रिंग str3. सो नाउ वी जस्ट गो एड एंड राइट इट. अगर कंकैटिनेशन करना है तो वी जस्ट गो एड एंड राइट इट. str3 इक्वल्स टू str1 प्लस str2. ये हो गया हमारा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन. सिस्टम डॉट आउट डॉट println, and then we write it as str3. वंस अगर इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो हमारा आउटपुट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड. गॉट इट. दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग कंकैटिनेशन. अगर इतना सिंपल होता है तो मैं प्रोग्राम नहीं बताऊंगा ना. सो देयर शुड हैव बीन समथिंग इन दिस. सो मैं इसलिए ये प्रोग्राम बता रहा था. दिस इज फॉर योर कंकैटिनेशन, दो स्ट्रिंग को कंकैटिनेट करने के लिए. नाउ दिस कैन बी डन इन अनदर वे, यानी स्ट्रिंग को अपेंड करते हुए. अभी यहाँ पे देखते हैं तो हम लोग दो वैल्यू यूज कर रहे हैं. अभी ये प्रोग्राम अगर इतना सिंपल है तो हमको डिस्कस करने का ज़रूरत ही नहीं है. अगर इफ एट ऑल वी डू, इफ दिस इज द ओनली बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट, देन हमको डिस्कस करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है. बिकॉज एवरीबडी नोस कि दो स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए बस प्लस लिखना है तो कंकैटिनेट हो जाएगा. एवरीबडी नोस two strings are operated with plus operand, then that becomes concatenation. So I'm interested in looking at this. It is because now if at all you look at, I'm consuming more memory here, because if at all I look at the kind of memory that I'm utilizing is for all the characters, I'm allocating the memory in str1, I'm using it in str2, and I am creating another variable str3 and appending both of them. So 3 times of the memory is being utilized here. I am creating multiple variables here. वो करने के वजह हम लोग और एक तरीके से हम लोग अपना स्ट्रिंग राइटर यूज करके हम लोग ये कर सकते हैं. I repeat, we can write this with the help of something called string writer. ये concatenation तो हमको सबको पता है, लेकिन ये स्ट्रिंग्स को अपेंड करने के लिए अपेंड बोल के एक मेथड रहेगा जो हमको हमारे स्ट्रिंग्स को ऐड करते जाएगा. सो उसको करने के लिए हमको क्या करना है, वी नीड टू यूज समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग राइटर. वी हैव समथिंग कॉल्ड स्ट्रिंग राइटर. वंस आई एम राइटिंग माई स्ट्रिंग राइटर, जब मैं यहाँ पे स्ट्रिंग राइटर को यूज कर रहा हूँ
सी ऑटोमेटिकली यहाँ पे import java.io.string writer आ रहा है, बिकॉज मेरा io क्लास में, io पैकेज में मेरा स्ट्रिंग राइटर अवेलेबल है, तो इसको यूज़ करना ज़रूरी है। सो जब भी हम लोग स्ट्रिंग राइटर यूज़ कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखना होगा import java.io.string writer का यूज़ करना होगा। जब हम लोग स्ट्रिंग राइटर यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग राइटर sw इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग राइटर। अभी हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए है और इसके बाद हम लोगों को बस लिखना है sw डॉट append मेथड। बस इसके अंदर हमारा जो वैल्यू है वो वैल्यू पास करना है, यानी हेलो, एंड ये हो गया है हमारा फर्स्ट वर्ड, एंड दूसरा वर्ड हो गया है sw डॉट append ऑफ मेरा सेकेंड वर्ड वर्ल्ड। और इसको जब एग्जीक्यूट करके देखते हो, जब इसको एग्जीक्यूट करते हो, यानी जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी इसको करते हैं स्ट्रिंग, इसको मैंने कहीं पे ऐड नहीं किया है अभी तक, एक भी वेरिएबल क्रिएट नहीं किया है। सो अभी मैं इसको लिखता हूँ str इक्वल्स टू sw डॉट टू स्ट्रिंग। जो मैं अभी तक राइट किया हूँ उसको मैं स्ट्रिंग पे स्टोर कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे मैं ये दोनों वर्ड्स को राइट किया हूँ, ये राइट कहाँ पे कर रहा हूँ, str पे राइट कर रहा हूँ। अभी मेरा वेरिएबल एक ही वेरिएबल डिफाइन हुआ है, और उसके बाद जब भी मैं इसको पास कर रहा हूँ, जब भी मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं प्रिंट करता हूँ system. Whenever I want to print it, I'll print it as system.out.println, and in this I just put it as str. Now once I look at this, I'll get the output as hello world. Got it? This is how you can concatenate your strings using something called your string writer. We use something called string writer. This is how you do it. Hope I am clear. ये कंकैटिनेशन के लिए हमको एक ही मेथड पता होता है। ये कंकैटिनेशन यानी मल्टीपल स्ट्रिंग्स को रीड करने के लिए, मल्टीपल स्ट्रिंग्स को यूज करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बस यही करते हैं कि str1 इक्वल टू सम वैल्यू, str2 इक्वल टू सम वैल्यू, str3 इक्वल टू str1 प्लस str2, यही करते हैं। लेकिन हमारे पास एक और क्लास भी है जावा में, स्ट्रिंग राइटर, जो मल्टीपल स्ट्रिंग्स को राइट करता है, राइट करके एक ही साथ एक स्ट्रिंग में हम लोग पास कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि अगर इसको ब्रेक करके रीड करना चाहते हैं तो हम लोग से अगर हेलो एक ही चाहिए होता है, देन यू कैन नॉट गेट इट। सो अगर वो करना चाहिए होता है तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, सो इसको हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और ये हेलो के पहले हम लोग प्रिंट करते हैं। सो वी विल call it here and we'll call it here also. दो बार हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। अभी हम लोग देखते हैं तो पहले मेरा हेलो आ गया है, बाद में फिर से भी हेलो आ गया है। Why it is not printing me here? Because I am not assigning str again. तो हमको क्या करना होगा, इसके बाद लिखना होगा str equals to, we are supposed to write it as sw dot toString. अगर इसको सेपरेटली प्रिंट करना होगा तो हमको पहले आएगा हेलो एंड बाद में आएगा हेलो वर्ल्ड, बिकॉज वो पहले हेलो को रीड कर लिया है, उसको हम लोगों ने प्रिंट कर दिया है, फिर से उसके बाद जो वैल्यू आया उसको अपेंड कर लिया है, वो भी प्रिंट कर दिया है। सो दिस इज हाउ यू जस्ट स्टार्ट अपेंडिंग द वैल्यूज। इसके बाद और तीसरा वैल्यू भी देना चाहते हो तो यू कैन गिव इट एज sw डॉट हेलो वर्ल्ड एंड देन डॉट अपेंड। I'll write it as how are you, hello world, how are you. Then after that I just come back here and write it as str equals to sw dot toString, and then after that I'll put it as system dot out dot println. Once I run this, see you get it as first one as hi, hello, how, hello world, and the third one यहाँ पे print नहीं कर रहा है because I am not given my str value here. Now I'll just give my str value here. देख लीजिएगा यहाँ पे पहले hello प्रिंट कर रहा है, बाद में hello world प्रिंट कर रहा है, एंड बाद में hello world how are you भी प्रिंट कर रहा है. So if at all you want to give the space,
you give the space before everything. अभी आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा. यहाँ पे hello हो गया है, hello world हो गया है, hello world how are you आ गया है. So this is how you append your string values to one another. This is how you can use something called string writer class. This is how you use something called your string writer class in your Java. Hope everybody is clear. This is how you append your strings with the help of your string writer. So now I'll just go ahead and copy this so that I can send this as today's programs. This is your string writer. Now we look at another program which will compare two strings. अभी तक हम लोगों ने देख लिया है फर्स्ट वन कंकैटिनेशन के लिए हम लोग कई तरह प्लस यूज कर रहे थे. आई हैव गिवन एन ऑल्टरनेटिव. अभी हम लोग टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स राइट ए प्रोग्राम टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स. अगर इसको करना है तो हम लोग कैसे करते हैं? स्ट्रिंग str1 equals to hello and the other one is string str2 equals to hello 1. Now to compare both of them, how do we compare? If str1 is equal to str2, then we write it sorry यहाँ पे str2 लिखना होगा. Then we write it system dot out dot print ln. Then we write it both the strings are equal. अगर वो नहीं होता है यानी कि अगर वो दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम लोग लिखते हैं else और in that we'll write it system dot out dot print ln and we write it as both strings are not equal. So this is how we write whether the strings are equal or not. Now once we just go ahead and run this, then it says both the strings are not equal. If at all we make both of them as hello, then once we run it, then it says both the strings are equal. This is how we compare two strings. Similarly, to compare, we have got another method also. This is the simplest way that we compare two strings. Now to compare, we have got another method also with the help of something called your string object operations. To go ahead and do that, मैं यहाँ पे ले लिया हूँ, so I'll just copy this. ये बहुत आसान तरीका के that is दो string create करते हैं और उन दोनों को if condition के साथ हम लोग करते हैं both of them equal or not. एक मिनट, इसको बहुत आसानी से हम लोग कर रहे हैं. दो स्ट्रिंग ले रहे हैं और उन दोनों को डबल इक्वल टू से कंपेयर कर रहे हैं. वो अगर इक्वल होते हैं तो हम लोग इक्वल कह रहे हैं, अगर नहीं इक्वल होता है तो नॉट इक्वल कर रहे हैं. सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस. अभी इसी को हम लोग चेक करने के लिए हम लोग दूसरा ये यूज़ करते हैं. वी यूज़ समथिंग कॉल्ड योर कंपेयर टू मेथड. वो कंपेयर टू मेथड को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हेलो और हेलो वर्ल्ड एंड सॉरी हेलो और हेलो वन. और इसके अंदर जब कंपेयर करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट जावा ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ और इसको कह रहा हूँ str और इसको इक्वेट कर रहा हूँ इक्वल टू. I want to consider this as my first value which is my str1.
इसको मैं str करके एक ऑब्जेक्ट के तरह मैं स्टोर कर रहा हूँ, बिकॉज आई कैन यूज दिस कंपेयर टू मेथड विथ ओनली ऑब्जेक्ट्स. सो फॉर विच मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके लिख रहा हूँ system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln. इसके अंदर मैं कंपेयर कर रहा हूँ str डॉट, यानी ये जो ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ उसके साथ मैं कंपेयर कर रहा हूँ, दैट इज str1 डॉट कंपेयर टू ऑफ, I want to compare it with another string, that is str2. Once I just go ahead and run this, ये अभी मैं इसको रन करके देखना चाहता हूँ ये क्या हो रहा है. सो जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे दे रहा है -1. सो जब ये -1 दे रहा है विच मीन्स बोथ द स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल. जब ये दोनों एक ही मिलते हैं, यानी इफ एट ऑल आई गिव इट एज हेलो एंड हेलो, then it shows me the output as 0 because both of them are equal. So it returns me an object value which is 0 if both of them are equal, and it returns me -1 if both of them are not equal. That is, it returns 0 if both of them are equal, and it returns your negative value if both of them are not equal. This is how we convert something called your this is how we compare two values with the help of something called your compare to method. So I'm using your object reference because whatever I want to capture it, I can capture it like an object. In order to use it, I'll just go ahead and show you. In order to do it, I'll write it as system dot out dot println. इसके अंदर मैं लिख रहा हूं मेरा जो फर्स्ट वैल्यू है यानी str1 डॉट कंपेयर टू ऑफ माई ऑब्जेक्ट, दैट इज योर ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग, दैट इज नथिंग बट योर str डॉट टू स्ट्रिंग. जब इसको कन्वर्ट करके चेक करना चाहता हूं, सो वंस मैं इसको रन कर रहा हूं तो मुझे वो वैल्यू दे रहा है 0, which means it is returning my value whatever this object is returning. ये जो comparison के साथ जो value दे रहा है that value is returned. If at all it is 1, यहाँ पे 1 दे रहा है, so which means hello and hello 1 को अगर compare कर रहे हैं, whenever you are comparing this, then see it is giving me a negative value, but string I am getting it as my object as 0 because it is comparing it with the object reference value. That's the reason why it is giving me 0 over here. So I am converting with the help of my object. अगर ये अभी के लिए अगर confusion दे रहा है तो please ignore this. However, we'll see all this in your Monday's class. Object के तरह कैसे use करें वो सब हम Monday के क्लास में देखते हैं. So अभी के लिए इतना समझो. You have another method called compare to, which compares two strings. अगर ये compare to return कर रहा है -1, then which means both of them are not equal. जब वो 0 रिटर्न कर रहा है which means both of them are equal. बस इतना ध्यान रख लीजिएगा. जब कंपेयर करने के लिए हम लोगों को एक पॉसिबिलिटी है डबल इक्वल टू यूज करना, दूसरा पॉसिबिलिटी है कंपेयर टू यूज करना. There is another option also available which is called your equals. So that can be obtained by str1 dot, that can also be given as str1 dot equals of your str2. str1 is compared with str2 and we'll just look at. So once you run, so here it is giving -1, so it is other than 0. So don't keep it as such -1. Other than 0, then it is not equal. If it is 0, then it is equal. Now we'll just look at and run this. Then see it is false in this case. Equals will return as false. Now if at all I give it as equal, then it will return me as true. Now this is how you get it as true. So we have 3 ways of identifying whether two strings are equal or not. So ये तीनों method है to find whether two strings are equal. str1
when it is compared with str2, we do it like this, or we can also do it as str1 dot compare to, and then in that we give it as str2. This is a second way of doing it. And the third way of doing it is str1 dot equals, and we write it as str2. This is how we compare two strings in multiple ways. These are the three ways in which you compare two strings and check whether they are equal or not. So these are the different ways that we have seen in order to add, in order to compare, in order to read from the keyboard and convert from int to string and string to int and your ASCII to string. These are the different things that we have done in today's class. Thank you so much. Thanks for listening to me. So if you have any questions, please reach out to your Kaizala groups. And for today's program, please get into the video link description. In the description, you can find the URL. By 4:30, we will update the URL. You can download from the URL for today's programs. Thank you so much. Thanks for listening.